Hello friends, welcome to my YouTube channel, and today's chapter is verb. As in last chapter we had discussed about subject verb agreement, and I told you that subject we have read and we will discuss verb forms in next chapter. So let's start our new chapter with verb forms. So here, as I have already mentioned, that the verbs are divided into two parts. First is main verb and second one is helping verb. You can say them helping verb, supporting verb or auxiliary verb. It depends up to the condition of sentence that how we put them in a sentence. When we construct a sentence, we need two things to construct a right sentence. First is subject and second is verb. So if we have these two things, it means our sentence is complete. Rest part like object or rest of the sentence like time, place, something, whatever is given in the sentence is extra part. Let's understand the main verb and auxiliary verb with the given examples. So first sentence is, my father has given me a gift. So in this sentence, we see that who is the giver? My father. Yesterday I told you the doer of the sentence or what we are talking about are two subjects. So in this sentence you can see that my father is doing something. It means our subject is who? My father. Second, has and given, both are verbs. A gift is object and me is also object. So what we have to see that which verb is given here. So we can see that what work is done in this sentence. ये जो सेंटेंस दिया है माई फादर हैज़ गिवन मी अ गिफ्ट, इसमें काम क्या हो रहा है? इसमें काम हो रहा है कि मेरे पिताजी ने मुझे एक गिफ्ट दिया है, यानी कि गिफ्ट देने का काम हो रहा है. तो गिवन जो रहेगी यहाँ पे ये हमारी मेन वर्ब रहेगी, क्योंकि काम यहाँ हो रहा है गिफ्ट देने का. And has is also given. Yesterday we read about it. Has is also a verb, but it is playing the role of helping verb, helping or auxiliary verb. So how many verbs are here? One given, second is has. So we can see that subject plus main verb plus helping verb is given in the sentence. So how we will identify the verb that this verb is main verb or supporting verb or helping verb? जो main काम हो रहा है वो हमारी main verb रहेगी, और जो भी उसके साथ added है हमारी helping verb से या कोई भी verb उसके साथ added है, it means वो क्या है? वो support कर रही हैं हमारे sentence को बनाने में. तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जो मेन काम हो रहा है वो ही हमारी मेन वर्ब है. एंड हु इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट हमने कल भी पढ़ा था. सब्जेक्ट होता है हमारा द डूअर ऑफ द सेंटेंस और द थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट. तो यहाँ पे तो हमें साफ साफ अपना डूअर मिल गया है, क्योंकि काम किसने किया है? माय फादर ने. फादर ने काम किया है क्या करने का? गिफ्ट देने का. और गिफ्ट किसको दिया है? मुझे दिया है. तो मैं भी यहाँ पर क्या हूँ? ऑब्जेक्ट हूँ. आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे सेंटेंस के साथ. सेम सेंटेंस, माय फादर हैज बीन गिवन अ गिफ्ट. So we can see that my father is given means subject has been given. Three verbs are given over here. Verb, verb, verb. A gift, object, as we have discussed in the first sentence. So we will see that what work is being done in the sentence.
माई फादर हैज़ बिन गिवन अ गिफ्ट। मतलब इस सेंटेंस में मेरे पिताजी को उपहार मिला है, लेकिन किसने उपहार दिया है ये हमें मेंशन नहीं किया गया है, तो हम यहाँ पे मेरे पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं। आई टोल्ड यू दैट द डूअर ऑफ द सेंटेंस और द थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ आर सब्जेक्ट्स। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि काम करने वाला तो दिखाई नहीं दे रहा है। माई फादर हैज़ बिन गिवन अ गिफ्ट, मेरे पिताजी को गिफ्ट दिया है, लेकिन किसने दिया है देने वाले का पता नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम अभी भी यहाँ पर माई फादर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट है हमारा गिफ्ट। गिफ्ट एक चीज है, एक ऑब्जेक्ट है जिसे यूज किया गया है। और हैज बीन गिवन यानी कि यहाँ हमें 3 वर्ब मिली हैं, जिसमें से देने का काम मेन काम है, इसीलिए ये हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। और यहाँ हमारे पास 2 सपोर्टिंग वर्ब हैं, 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, तो उसमें से हमारी हैज़ हो गई फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हो गई, और यहाँ हमें एक और वर्ब दी गई है जो हमारी बिन, तो वो हमारी सेकंड हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो अब हमारे सेंटेंस में क्या क्या है, यहाँ है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस 1 हेल्पिंग वर्ब 1 एंड हेल्पिंग वर्ब 2, 2 हेल्पिंग वर्ब। ये है हमारा कंस्ट्रक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बारे में अब हम बाद में बात करेंगे जब हम पूरे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो अब देख लेते हैं हम अपने तीसरे सेंटेंस को। तीसरा सेंटेंस है अशोक विल हैव बीन स्कोल्डेड बाय टुमारो। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमको सेंटेंसेस में टाइम भी दिया रहेगा जब हमने टेंस के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम अशोक के बारे में बात कर रहे हैं। तो अशोक हो गया हमारा सब्जेक्ट। बाकी है हमारे पास बाय टुमारो, ये हमारा टाइम रेंज है। यहाँ हमारे पास है इतनी सारी वर्ब, यहाँ ये भी विल भी वर्ब है, हैव भी वर्ब है, बिन भी वर्ब है, स्कोल्डेड भी वर्ब है। इस सेंटेंस का मतलब है कि अशोक विल हैव बीन स्कोल्डेड बाय टुमारो, मतलब कल तक अशोक को डांट पड़ चुकी होगी। तो यहाँ पे जो मेन काम हो रहा है डांट पड़ने का, स्कोल्ड होने का, तो इसका मतलब है कि ये हमारी मेन वर्ब है। अब यहाँ रही हमारी 3 ऑक्सिलरी वर्ब हमको दिखाई दे रही हैं, तो ये तीनों की 3 हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब 1, हेल्पिंग वर्ब 2 एंड हेल्पिंग वर्ब 3। तो इस सेंटेंस में हमारे पास क्या क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ है मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब 1, हेल्पिंग वर्ब 2 एंड हेल्पिंग वर्ब 3। तो यहाँ पर हमारी कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स दी गई हैं। ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब और सपोर्टिंग वर्ब, जो बहुत सारे सेंटेंसेस में तो वर्ब का काम करेंगी, मेन वर्ब का काम करेंगी, लेकिन ज़्यादातर सेंटेंसेस में वो क्या काम करती हैं, वो हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। वो पहली हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, दूसरी तीसरी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, क्योंकि एक सेंटेंस में हमारे पास बहुत सारी वर्ब्स हो सकती हैं, मोर देन 1 और मोर देन 2 वर्ब्स हो सकती हैं। तो ये हमारी कभी कभी तो ये काम करती हैं, हमारी मेन वर्ब रोल करती है, प्ले करती हैं, और कभी कभी और बहुत सारे सेंटेंसेस में ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वर्ब कम ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब और सपोर्टिंग वर्ब। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बी की फॉर्म के बारे में। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन चैप्टर्स। सो आज हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये आखिर बी की फॉर्म्स होती क्या हैं। बी का मतलब होता है कुछ होना, किसी चीज का कुछ होना हमको बी वर्ड से हम उसे बताते हैं। तो हम इसको प्रेजेंट में 3 तरीके से हम इसमें बात कर सकते हैं। एक होता है हमारा इज, एक होता है हमारा एम, और एक होता है हमारा आर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन। यस्टरडे वी हैड टॉक्ड अबाउट इट। तो ये हमारा लगता है अकॉर्डिंग टू द पर्सन। अगर वो सिंगल वन है तो इज लगेगा, अगर प्लूरल है तो आर लगेगा, और एम लगता है हमारा आई के साथ।
वैसे ही पास्ट में ये जो बी का फॉर्म है, इसका जो पास्ट होता है ये हमारा वॉज और वर होता है अकॉर्डिंग टू द पर्सन। तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है किसी चीज़ का कुछ होना। जैसे अगर आपको ये बताना है कि आप क्या हो, तो आई एम अ टीचर मीन्स मेरा एक टीचर होना किससे बता रहा है, इस एम वर्ड से बता रहा है। अब ये एम आया कहाँ से, ये एम आया बी की फॉर्म से, तो ये हमारा बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, तो यहाँ से ही ये हमारे वर्ड्स आए हैं। तो बी मतलब किसी चीज़ का कुछ होना। अब वैसे ही है हमारा सेकंड हैव फॉर्म जो होती है, हैव का मतलब भी होना ही होता है, लेकिन ये होता है किसी के पास कुछ होना। जैसे हमारे पास कुछ चीज़ है, आई हैव मनी, तो आई हैव समथिंग, आई हैव समथिंग बिग। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं, हैव फॉर्म से पता चलती हैं। ये भी होना होता है, लेकिन ये होता है हमारा किसी के पास कुछ होना। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बताता है किसी चीज़ का कुछ होना, किसी व्यक्ति का कुछ होना, और ये बताता है किसी के पास कुछ होना। तो जब ये अपनी मेन जो है आपकी वर्ब आती है, तो ये मेन वर्ब का रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर ये हमारी ये सब चीज़ें आ रही हैं, उसके साथ फॉर्म्स में चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा सपोर्टिंग वर्ब का काम करती हैं। तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या क्या होती है, हैज़ और हैव। ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। हैज़ और हैव आता है हमारा अकॉर्डिंग टू द पर्सन। अगर वो सिंगुलर नंबर है तो हैज़ आएगा, अगर वो प्लूरल नंबर है तो हैव आएगा। और हैड आता है हमारा पास्ट में। ये दोनों भी क्या है, हमारे पास्ट फॉर्म्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम डू के साथ। डू का मतलब होता है करना। वैसे तो डू एक क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि हम ज़्यादातर सेंटेंस में डू को मेन वर्ब की तरह ही लेते हैं। काम करना एक मेन वर्ब है, लेकिन बहुत सारे सेंटेंसेस में जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि डू, डज और डिड जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। तो डू डज हम कैसे लगाते हैं, डू डज लगाते हैं हम अकॉर्डिंग टू द पर्सन। प्रेजेंट में अगर बात कर ली जाए तो डू लगता है हमारा प्लूरल के साथ, और डज लगता है हमारा सिंगुलर के साथ, और डिड आ गया हमारा पास्ट फॉर्म में। उसके बाद आता है हमारा गेट। जो गेट है इसका मतलब होता है प्राप्त करना। तो ये आ गया हमारा गेट। डू हो गया हमारा काम करना, और गेट हो गया हमारा किसी चीज़ को पाना या प्राप्त करना। तो ये जब हमारा फर्स्ट फॉर्म में आता है अकॉर्डिंग टू द पर्सन, कल भी डिस्कस कर लिया था, गेट आ गया हमारा प्लूरल के साथ, और गेट्स आ गया हमारा सिंगुलर के साथ, और गॉट हो गया हमारा पास्ट फॉर्म। ये सब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चार हमारी जो वर्ब्स हैं ये हमारे सारे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने में हमारी हेल्प करती हैं। कभी कभी मेन वर्ब का रोल प्ले करती हैं, और ज़्यादातर ऑक्सिलरी वर्ब का रोल प्ले करती हैं। इसीलिए इनका जानना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ब तो बहुत सारी हैं, इन्फिनेटिव है वर्ब्स, लेकिन ये जो चार मेन वर्ब हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने में। एट द एंड हम बात कर लेते हैं फॉर्म्स की। वर्ब की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं जो हमको हेल्प करती हैं अपने राइट सेंटेंसेस बनाने में, और जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वो वर्ब कम ऑक्सिलरी होती हैं जो आपको हेल्प करेंगी। एज एग्जाम्पल हम उन्हीं को लेके चलते हैं कि वो हमें कैसे सेंटेंस बनाने में हेल्प करती हैं। देखा जाए तो ये क्या है, हमारे 4 पिलर्स ऑफ ग्रामर हैं, क्योंकि मैक्सिमम सेंटेंसेस में ये ही हमें हेल्प करते हैं। मैक्सिमम क्या, लगभग सारे सेंटेंस में ये हमें हेल्प करते हैं अपना सही सेंटेंस बनाने में। तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि बी जो होती है हमारी वो किसी का होना बताती है, डू होता है हमारा काम को करना, हैव होता है किसी के पास कुछ होना, और गेट होता है प्राप्त करना। तो ये हमने अपना डिस्कस कर लिया था। और अब आप लोगों ने पहले भी ये सब कुछ पढ़ा होगा कि हमारी वर्ब की जो होती है वो 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, और एक होती है हमारी आईएनजी फॉर्म जो कि हमको कंटिन्यूस सेंटेंस बनाने में हेल्प करती है। और बाकी रहे हमारे ये वर्ड्स, तो ये क्या है, हमारे बेस वर्ब होती है, जहाँ से ये हमारे बेसिक वर्ड आए हैं। कि आखिर ये फॉर्म हमने जो बनाई वो किस वर्ड से बनाई, हमें पहले ये भी पता होना चाहिए कि उसका जो बेस वर्ब है वो क्या है, उसका जो बेसिक वर्ड वो था, ओरिजिनल जो वर्ड था उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं बी फॉर्म की, तो बी है हमारा किसी का कुछ
कुछ होना, तो उसका ये हमारा एक बेसिक वर्ड है इंग्लिश का, तो उसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है आपकी इज, एम और आर, जिसे हम पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वॉज और वर, ये भी हम अकॉर्डिंग टू पर्सन पुट करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल देख के। थर्ड फॉर्म इसकी होती है बिन। बहुत सारे लोग इसको बीन प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज रॉन्ग, तो इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है बिन। अब बिन सोच के आप इसका स्पेलिंग BIN नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएगी, आपकी स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएगी। इसकी स्पेलिंग होती है BEEN और हम इसको प्रोनाउंस करते हैं बिन। उसके बाद आती है हमारी इसकी ING फॉर्म, तो ING फॉर्म बन जाती है बीइंग। ING फॉर्म कैसे बनती है? ING फॉर्म जो होती है वो बनती है आपकी बेसिक वर्ड, जो हमारा बेस वर्ब होती है उसी में हम क्या करते हैं, ING प्लस कर देते हैं, और इसी को जीरंड भी कहते हैं। अब जीरंड क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको ING फॉर्म करके ही ले चलते हैं। सेकंड है हमारा डू वर्ड, जिसका मतलब होता है करना, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डू एंड डज, अकॉर्डिंग टू द पर्सन हम उसे पुट करेंगे सिंगुलर और प्लूरल में। और उसके बाद आ जाती है हमारी सेकंड फॉर्म आती है हमारी डिड में, और थर्ड फॉर्म होती है हमारी डन। जैसा मैंने आपको बताया कि ING फॉर्म बनती है हमारी किससे, बेस वर्ड के साथ ING प्लस करके, तो ये हो गई हमारी डूइंग। उसके बाद आ जाती है हमारी हैव फॉर्म, जिसका मतलब होता है किसी के पास कुछ होना, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है हैज़ और हैव। सेकंड और थर्ड फॉर्म उसकी सेम होती हैं, जो होती हैं हैड, और ING फॉर्म फिर से हमारी बन गई इसमें, इस बेस वर्ड में ING पुट करके। लास्ट है हमारा गेट, तो गेट हमारा होता है प्राप्त करना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गेट एंड गेट्स अकॉर्डिंग टू द पर्सन, और उसके बाद आती है हमारी सेकंड फॉर्म गॉट, और इसकी थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है, गॉटन भी होती है, लेकिन हम लोग ब्रिटिश रूल्स फॉलो करते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग गॉट ही लिखेंगे, क्योंकि गॉटन जो है हमारा अमेरिकन में आता है। उसके बाद है हमारा ING फॉर्म, तो सेम चीज आ गई हमारी, बेस वर्ड के साथ हम ING पुट कर देंगे तो बन जाती है हमारी ING फॉर्म। ये चारों फॉर्म बहुत सारे वर्ब्स हैं, लेकिन हम सिर्फ इनको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपके क्या हैं, पिलर्स ऑफ ग्रामर हैं, जो आपको हमेशा अपने सेंटेंस बनाने में हेल्प करेंगे। दे विल हेल्प यू इन योर एंटायर ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज to construct a right sentence, so you can construct a right sentence and can speak fluently without hesitation, because you know that which word you have to put at what place. अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।